Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम एक और प्रॉब्लम, एक और कदम, इशू ऑफ शेयर्स. ओके, अगेन आपका कोई भी लेवल रहने दो, अगर ये चैप्टर आपको है तो ये आज का सोल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन आपके काम ज़रूर आएगा. नाउ इन दिस चैप्टर पिछले कुछ लेक्चर्स से, इनफैक्ट पिछले काफ़ी लेक्चर्स से मैंने इशू ऑफ शेयर्स का मतलब, प्रोसीजर, टेक्निक सारा तामझाम एक्सप्लेन कर लिया है. आज एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर 7-8 घंटे का लेक्चर एक साथ में लिया जाए, आप रिसीव तो करोगे, बराबर अंडरस्टैंड कितना करोगे पता नहीं. तो मेरे लिए सिंपल है, मैं आपका 10-15 मिनट ले लूँगा और एक कॉन्सेप्ट एक बार सिखा दूँगा. आज का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, टेक्निक के लिए तो मिस्टर शाहरुख खान हमारे लेक्चर्स में काफ़ी फेमस है, क्योंकि इन्होंने हमको ये सिखाया है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव. अगर आप मांगोगे तो ही तो आप पाओगे, बैठे बैठे तो भीख भी नहीं मिलती है. तो आज के क्वेश्चन का काम क्या है, पढ़ लेते हैं जी. कहते हैं, अर्चना लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. अर्चना लिमिटेड जो एक कंपनी है, उसने कोशिश की, उसका ये इच्छा थी 10,000 शेयर्स बेचने की. एक शेयर की कीमत 10 रुपये, उसको कहते हैं फेस वैल्यू. एट 12 पेएबल. ये एट 12 क्यों है? देखो, अगर कंपनी अच्छी है, तगड़ी है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने प्रोडक्ट का या अपने शेयर्स का थोड़ा पैसा ज़्यादा मांग सकती है, और पब्लिक वो देगी भी, खुशी खुशी देगी, क्योंकि पब्लिक भी जानती है ये कंपनी तगड़ी है भैया, ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है, किधर भागने वाली नहीं है. तो ये 2 रुपया प्रीमियम होता है, ये आपको लाइबिलिटी साइड पे लिखना पड़ता है. आगे 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट, जिसमें कहा इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो 2 रुपया जो है ना, तो 5 के 2 हिस्से हैं. 3 विच इज़ फॉर कैपिटल, 2 which is for premium, and then 4 rupees on first and final call. So ये जो टोटल आप करोगे ना, ये 12 होता है, और 12 ऑब्वियसली क्यों होता है? क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम का है, जो अलॉटमेंट के टाइम पे असर करेगा. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स ओनली. पता नहीं क्यों 10,000 कंपनी को बेचना था, बट पब्लिक कहती है नहीं, हमको उतनी भूख नहीं लगी है, हमको 8,000 शेयर्स दो. ओके, आपका कैलकुलेशन, आपका और हमारा, will not be for 10,000. This is a problem जिसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब. What is अंडर सब्सक्राइब? यार बेचना था 10,000, पब्लिक ले रही है 8,000, तो पब्लिक ने 8,000 के प्रोडक्ट खरीदे, 8,000 का आप कह सकते हो दुकान में आके माल खरीदा, तो 8,000 का ही
हिसाब होगा। ओके, अलग अलग लेवल्स पे। कहा केतन कोई तो है, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, केतन के पास 400 शेयर्स थे, मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट के टाइम पे तो 5 रुपया देना ही था। फुल पेमेंट का मतलब क्या है? आने वाला पेमेंट, फ्यूचर का पेमेंट, बराबर। केतन भला आदमी है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन ऐसी होती है, बराबर, कि कभी कभी थोड़ा कम और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा, परफेक्ट नहीं हो पाते। ओके, तो आई रिपीट, कुछ लोग कभी कभी पैसा देते नहीं है, टाइम चला गया पैसा ही नहीं दिए, उसको कहते हैं कॉल इन अरियर। और कुछ भले लोग, एकदम भले, कुछ गिने चुने लोग वक्त के पहला पैसा देते हैं। तो केतन ने वही किया, वक्त के पहले उसने कॉल का पैसा दे दिया। एक ही कॉल था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो केतन के जो 400 शेयर्स है उस पे कॉल का पैसा 4 रुपया पहले ही हमको मिल जाएगा। इसको कहते हैं कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर का उल्टा। कॉल इन अरियर इज समथिंग दैट आई हैव थॉट यू, मैंने सिखाया है। ये एसेट में आता है, कॉल इन एडवांस लाइबिलिटी में आता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमें, दुकानदार को, कंपनी को एडवांस में मिले तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना वो लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका टाइम अब तक नहीं आया, वो अपनी जेब में तो है, बराबर, बट अपना नहीं है। हाँ, तो अगर मैं आपको जो अपना रफ वर्क है ना वो थोड़ा मैं घुमा दूँ, उसका शेयर करा दूँ, तो एप्लीकेशन पे इट इज़ 8000 इंटू 3, अलॉटमेंट पे इट इज 8000 इंटू 5, बट नोट कि उसमें 2 रुपया प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे इट इज़ 8000 इंटू 4। नोट कि वहाँ पे कॉल इन एडवांस है, इसके लिए मैंने लाइबिलिटी में कॉल इन एडवांस लिखा है, और वो कॉल इन एडवांस है 1600। नाउ आई डोंट हैव टू गो टू द क्वेश्चन बिकॉज आई नो आस्क रिसीव। फर्स्ट इज रिसीव, क्या? वो एप्लीकेशन का पैसा, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अकोमोडेटिंग नरेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 8000 इक्विटी शेयर्स एट 3 पर शेयर रिसीव्ड। अभी आस्क आएगा। नाउ माई स्पीड इज अ लिटिल फास्टर, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड and then on your own solve this, not copy it but on your own solve this. Next is ask, हमने हाथ बढ़ा दिए, जितना हो सकता है उतने बढ़ा दिए, तो वो एप्लीकेशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू दैट द नरेशन। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन ट्रांसफर, ओके, टू शेयर कैपिटल, ऑन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कैपिटल के लिए भी आस्क कर रहे हो, प्रीमियम के लिए भी, तो अकॉर्डिंगली यू विल राइट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000, बट फ्रॉम दैट 24 इज गोइंग टू कैपिटल एंड 16 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो आपने ज़्यादा में बेचा ना, हर कंपनी ये नहीं कर सकती, बट कुछ कंपनी जिनका प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है, ओके, वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि जो मार्केट है, शेयर मार्केट में, उसमें जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने शेयर के लिए ज़्यादा पैसा दे। अभी आएगा रिसीव। तो रिसीव बड़ा सिंपल है जी, आप बैंक में पैसे डाल दीजिए, हमने डाल दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर आप ध्यान दो अमाउंट नहीं आया, अमाउंट क्यों नहीं आया, ओके, देख लेना, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक बंदे ने, केतन ने 1600 ज़्यादा दिया ना, पैसा आ गया। 40,000 तो अपने हक का आया, उसमें 24,000 कैपिटल का और 16,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का, अपने हक का, ओके। हाँ, बट देन 1600 रुपया अभी ही अलॉटमेंट के टाइम पे ज़्यादा भी तो आया, तो टोटल कितना आया, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल कितना आया। कॉल्स इन एडवांस इफेक्ट्स दिस एंट्री, सिमिलरली कॉल इन अरियर ऑल्सो इफेक्ट्स दिस एंट्री। बाय दिस एंट्री व्हाट डू आई मीन, जो रिसीव वाली एंट्री होती है ना, उस पर असर करता है। तो टोटल इज 41,600। सो आई रिपीट, कॉल इन एडवांस मतलब कोई भला शेयर होल्डर टाइम के पहले पैसे दे देता है। अभी उसने अगर टाइम के पहले पैसे दे दिए तो ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्डिंग थोड़ा अलग किया जाता है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट द नरेशन हैज़ बीन रिटन, काफ़ी लंबा है, बट अकॉर्डिंगली द डिटेल्स ऑफ द एंटायर स्टोरी ऑफ केतन हैज़ बीन मैंशनड इन द नरेशन ऑल्सो। आई रिपीट माई सेल्फ, हमने किया एप्लीकेशन का रिसीव आस्क, फिर हमने किया अलॉटमेंट का आस्क रिसीव। अब हम जाते हैं
कॉल की ओर, और कॉल के अंदर थोड़ी आनाकानी होगी। क्यों? क्योंकि आपको कॉल का पैसा ऑलरेडी थोड़ा सा पुरानी 1600 रुपया मिल गया है। पहले तो आप कर लो आस्क, उसमें बेहिचक 32,000 आप आस्क कर लो। तो दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे टेंशन मत लेना, बिंदास लिख लेना। बट वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट, व्हेन यू रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट, बट बैंक में अगर आप नोटिस करो कुछ नहीं आया, द कॉल इज 32,000, विल यू गेट 32,000? इंपॉर्टेंट, थोड़ा सोचना। हाँ सर 32 मांगा है तो मिलना चाहिए यार, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। केतन है ना, एक केतन, क्या वो अभी कॉल के टाइम पे अपना पैसा मतलब 400 इंटू 4 1600 देगा? नहीं। केतन बोलेगा मैं बेवकूफ़ है क्या, मैंने ऑलरेडी पहले दे दिए इनफैक्ट, और ये सत्य है, आने वाला है। क्या? केतन बोलेगा मेरे को तो इंटरेस्ट दो, कंपनी मेरे को इंटरेस्ट दो। क्यों? मैंने तो आपके जेब में पहले पैसे डाल दिए। एंड थ्रू कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस दोनों पे इंटरेस्ट बनता है, जो आई होप ये चैप्टर में आगे जाके हम करेंगे। बट येस बनता है, अभी नहीं, बट अभी आपको इतना ही जानना है कि केतन विल नॉट पे कितना 1600। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कॉल इन एडवांस के खाते में आपने जमा किया है, उसको यहाँ पे यूज करो। सो 3400 क्यों आया? क्योंकि जो कॉल इन एडवांस है उसके अंदर 1600 है। सो मांगा 32, मिलेगा नहीं। 3400 कैसे आया? द कॉल इन एडवांस विच इज 1600 शुड बी यूटिलाइज्ड ओके फॉर द मनी नॉट रिसीव्ड। प्लीज नोट, ये कॉल इन अरियर नहीं है, नॉट सिमिलर बट बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है, कॉल इन अरियर के परे है। एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री और उसका नरेशन फ्रेम करना पड़ता है। ओके, बीइंग अ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 7600 एट 4 पर शेयर रिसीव्ड एंड ऑन 400 शेयर्स एडजस्टेड। ओके, तो मतलब 8000 पे नहीं मिले, 7600 ग्रैंड टोटल आपका आ जाएगा। प्लीज लिख देना 1,93,600। द ओनली कॉन्सेप्ट न्यू टुडे was call in advance. Where do you write it? In any problem? Liability बराबर। और जब आपको पैसा वो एडवांस में मिलता है तो उसके रिसीव के एंट्री में आपको मेंशन करना पड़ता है, और फिर आने वाले कॉल में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट में मिला और फिर कॉल के टाइम पे हमको उतना पैसा कम आया, हमने कॉल इन एडवांस से एडजस्ट किया। आई होप आप ये कॉल इन एडवांस वाला नॉट बखेड़ा कॉन्सेप्ट समझ गए हो। वेल, जैसे ही आने वाले प्रॉब्लम्स में रिपीट होगा दोबारा पढ़ा दूंगा मैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप पुराने हो तो शेयर करें हमारे लेक्चर्स को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं। अगर कोई चीज़ आपको हमें बतानी है या कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बड़ों का, छोटों का, परिवार वाला, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।